دی جان آپ نے بلایا؟ وہ متحیر سی دی جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ صبح کے ابھی بمشکل 9 بج رہے تھے، ناشتے کا وقت تھا۔ ایسے میں دی جان کا عجلت میں طلب کرنا وجہ بلا شبہ بہت ضروری کام تھا کوئی۔ جی بچے، ناشتہ تیار ہو گیا؟ جی ہو گیا، بس میں ٹیبل پر لگوا رہی تھی۔ کوئی ضروری کام تھا کیا؟ وہ گوں میں گرفتار تھی۔ ہاں آپ یوں کریں، تیار ہو جائیں، ناشتہ رضوانہ ملازمہ کے ساتھ آج لگوا دے گی۔ جی خیر ہے۔ بے دھیانی میں اس بات میں سر ہلاتے اچانک ان کے الفاظ پر دھیان دیتی وہ چونکی۔ سب خیر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ کل رات آپ کے ماموں کا فون آیا تھا، بتا رہے تھے کہ وہ اگلے ہفتے بیرون ملک روانہ ہونے والے ہیں، لہٰذا آپ جوڑے کے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے ان کی حویلی ہو آئیں۔ چونکہ باران نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے بیرون ملک واپس جا رہے ہیں، تو میں نے آج ہی آپ کے ماموں کو کہہ دیا آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، 2-2.5 گھنٹے گزار کر آ جائیے گا، پھر باران کو شاید کام سے شہر جانا ہے۔ دی جان نے تسلی کے ساتھ خاصا تفصیلی جواب دیا، لیکن ادھر میرال کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے ہنوز کھڑا دیکھتے نگاہ اٹھائی۔ کچھ نہیں دی جان، ضروری ہے کیا؟ اس کی آواز پست تھی، ساتھ وہ بے آواز قدم اٹھاتی تخت کے قریب چلی آئی۔ ضروری اور غیر ضروری کی بات نہیں ہے بیٹا، رسم دنیا ہے، اور بالآخر وہ آپ کے اپنے ہیں۔ اگر انہوں نے دنیا داری کی خاطر پیش رفت کی ہے تو ہم بھی کم ظرفی کا ثبوت نہیں دے سکتے نا، دنیا کا نظام چلتا ہی ایسے ہے۔ اس کی شش و پنج کو سمجھتے انہوں نے اصل پہلو کو سامنے رکھا۔ ٹھیک ہے دی جان، میں کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں گی، انہیں خواہ تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا مطلب ہے، انگلیوں کو مسلتی وہ ٹھوس عذر تلاشنے میں بری طرح ناکام ٹھہری تھی۔ انہوں نے جوڑے کے ساتھ بلایا بیٹا، اور یہ خواہ نہیں ہوتا۔ پر دی جان، وہ باران آپ کے شوہر ہیں، بچے آپ کو ان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ آپ ساری عمر اس سے کتراتے ہوئے گریزاں نہیں رہ سکتی، ممکن ہی نہیں، اور ایسے رہنا اخلاقاً شرعاً دونوں اعتبار سے انتہائی معیوب بات ہے۔ خیر، ایک گھر میں رہتے بنا کسی خاص وجہ کے آپ دونوں کا الگ الگ کمروں میں رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں، لیکن ہم نے آپ کے ذہنی اور دلی کیفیت کے پیش نظر اس اہم مرحلے کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا ہے، تاکہ آپ خود کو تیار کریں، اس نئے رشتے کو پوری دلی آمادگی سے قبول کریں اور نبھانے کی کوشش کریں۔ رفتہ رفتہ اس تبدیلی کو ایک خوشنما رستے میں ڈالیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گی۔ صحیح موقع ہاتھ لگتے ہی دی جان نے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کسی حد تک واضح الفاظ میں اس کی برین واشنگ بھی کی تھی۔ جواباً وہ سر جھکائے لب چبا رہی تھی۔ میں نے باران سے کہا تھا آپ کو بھی ساتھ بیرون ملک گھما لائے، ہوا پانی بدلے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں۔ بتاؤ ذرا، اتنی اہم چیز تھی، بنوا نہیں لینی تھی کیا؟ توقف سے ان کے شکوہ کناں ہونے پر اس نے حیران نظر اٹھا کر دی جان کو دیکھا، جو یوں پوتے سے ناراض ہوئی گویا پاسپورٹ بنانے کی نہیں، سرکس کی ٹکٹ لینے کی بات کی گئی ہو۔ خیر، میں نے کہہ دیا ہے، فارغ ہو کر بنوا لے گا، ابھی تو جائیں، جا کر تیار ہو جائیں، پھر دیر ہوئی تو ناراض ہوگا وہ۔ کہتے ساتھ ہی دی جان نے ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کا بھی اشارہ دیا اسے، تو وہ کچھ بے بنیاد عذر لبوں میں دبائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور مجھے دیکھ کر خوشی ہوگی اگر آئندہ باران کے چھوٹے موٹے کام آپ محبت اور چاؤ سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں گی۔ دہلیز عبور کرنے سے قبل دی جان کا ایک اور فرمان اس کے پیروں سے لپٹا جس پر وہ بنا کچھ کہے نکل گئی تھی۔ گاجری رنگ کے کامدار سوٹ میں وہ نفیس سے میک اپ اور جویلری پہنے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تیار ہو کر مضراب کے ہمراہ نیچے آئی، جن محترمہ کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ ویسے آنی تو جنابہ کو شرم تھی، جنہوں نے یونیورسٹی جانے کی بجائے اسٹائلش بیوٹیشین کی اہم خدمات یوں ذوق و شوق سے انجام دیں جیسے بھابھی میکے نے بھائی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہوں۔ ہائے، مضراب عثمانی کے شوق و منطق، بیچاری میرال تو بس لب سی کر رہ گئی تھی۔ سب سے مل کر بے وجہ بتیسی کی نمائش کر رہی مضراب کے ہمراہ وہ باہر نکلی، جس نے پورچ میں کھڑی بلیک چمچماتی گاڑی کے پاس وائٹ کف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے قد و جسامت کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہے باران کو دیکھتے شریر مسکراہٹ لیے اسے کھینچتی اس کی جانب لپکی۔ ویسے بھائی صاحب کو معلوم ہے طوطے کا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ایکسکیوز می؟ اترنگی سوال پر اس نے ماتھے کے بل قریب لاتے بہن کو دیکھا۔ بتائیں نا، آئی تھنک ریڈ چلی۔ اور بندر کیا شوق سے کھاتا ہے رابی؟ اس نے آنکھیں دکھائیں، لیکن مقابل بھی مضراب تھی۔ بتائیں نا، آئی تھنک امرود، اور خرگوش گاجر، وہ روانی میں بولا۔ جواباً مضراب کو بناوٹی کھانسی کا زبردست دورہ پڑا، جس پر بری طرح چونک کر باران نے ایک ایک قدم پیچھے لے رہی مضراب کی شریر اور زومائنی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔
तो ना चाहते हुए भी बेसाख्ता खिसियानी मुस्कुराहट लबों की तराश पर बिखरी। उधर हवन्नक मीराल ने अजीब निगाहें उठाई तो मुकाबिल को मुकम्मल सफेद और खुद को गाजरी रंग में मलबूस देख मिसराब की शरारत समझती बुरी तरह सटपटाई। आलम तो ये था कि एक सर्दी से सफ़ेद पड़ते गाल भी गुलाल होने लगे थे। मैंने कुछ नहीं कहा भाई साहब, मैं पैदाइशी मासूम हूँ, जो कहा है आपने अपनी ज़ुबानी का, मैं तो चली। बहरान की सरजनशी घूरी के जवाब में वो अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ती सरपट भागी थी वहाँ से। वैसे मेरी माने तो आप दोनों मामू मामी के पास जाकर बिल्कुल भी सुनहरा मौका ज़ाया ना करें, बल्कि मौके का फ़ायदा उठाएं कहीं दूर वादियों में। राबी बहरान का एक कदम उठा। मर्जी है भाई, मुखलिसी की कदर ही नहीं, बोरिंग लोग, वो खारजी दरवाजे से ये जाओ वो जाओ। पीछे बहरान चाह कर भी अपने भारी दिलकश कहे को मजीद काबू नहीं कर पाया था। उसके महसूस कुन गंभीर कहकहे की गूंज से वो बुरी तरह खिफत और घबराहट का शिकार होती मखरूती उंगलियों को बाहम पैवस कर मरोड़ने लगी थी। उधर आंखों के भीगे किनारे साफ कर रहे बहरान की नज़र जब उन मजलूम उंगलियों पर गई तो फौरन उसका कहकहे का गला घुटना था। आ जाए, हम देर हो रही है हमें। गला खंकार कर खुद पर बुर्दबारी तारी करता वो मुखातिब हुआ तो मिराल सर झुकाए अस्बात में सर को जुम्बिश देती थान की तरह लिपटी चादर संभालती गाड़ी की से मुतवज्जो। बहरान ने फौरन जेंटलमैन का किरदार निभाते फ्रंट डोर को खोला तो लहजे भर के लिए वो थमकर नासमझी से उसका वजीह चेहरा देखने लगी, जिसने अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने खोल दी थी। गाड़ी की सीट थोड़ी ऊंची है और ये सब लपेट कर आप मुश्किल से चढ़ पाएंगी। सादगी से उसने पहले थार की ऊंची सीट फिर उसके अच्छे खासे ज़र्क पर लिबास की तरफ इशारा करते अपने हाथ को आगे बढ़ाया। जवाबन गैर मुतवाजन हो रही सांसें खासे घुले ढुले अंदाज में उसकी झिझक और घबराहट का राज अफशा करने लगी, जिसमें चेहरे की उड़ी हवाइयाँ पेश पेश थीं। हम लेट हो रहे हैं जी। हड़बड़ाकर उसने अपना लरसता हुआ ठंडा ठार हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर रखा, जिसे मुकाबिल ने कुछ ऐसी नरमी और एहतियात से अपनी कवि उंगलियों की गिरफ्त में कैद किया गोया नाजुक आप कीने हो। साथ आंखों से सवार होने का इशारा देते दूसरी हथेली गाड़ी के रूफ के साथ लगाकर उसने इस बात को भी यकीनी बनाया कि उस खब्तुल हवास लड़की का सर हड़बड़ाहट में रूफ से न लग जाए। इस दिलफरेब एहतियात और ख्याल रखने के अमल में वो खुद भी हरासा दोशीज़ा बड़े गैर महसूस अंदाज में उसके महकते मजबूत बाजुओं के हिसार में कैद सी उसका नीचे तक लटक रहा पल्लू उठाकर गोद में धरता आराम से डोर बंद करके दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर शान से विराजमान होने तक वो हथेली से लिपटे उस मजबूत लम्स की हरारत के असर से दरहम बरहम सांसों को संभालने की तगो-दो में लगी थी कि यकायकी तेज खुशबू गर्म सांसों की हिद्दत के साथ करीब हुई तो वो दहल कर आंखें खोलती पीछे सीट से चिपकी थी। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सीट बेल्ट अटकाकर वापस अपनी सीट पर टिकते उसने अपने अमल को जस्टिफाई किया, जिस पर आते आते टल चुके दिल के दौरे पर शुक्र अदा करती मिराल ने महज हलक तर करने पर इक्तफा किया। पसीना साफ कर ले। हवेली का कवि हैकल गेट से गाड़ी निकालते उसने 4-5 टिश्यूज की सिम बढ़ाए तो मिराल रूहानसी निगाहों से अपने पहलू में देखने पर मजबूर हुई। ये बंदा है या MRI मशीन? वो भी उसकी जीरक निगाह से मुख्फी नहीं था, जिसकी निगाहों की गिरफ्त में आना ना दोनों ही कतई बेमायनी थे। रिलैक्स हो जाएं, हम जंग पर नहीं जा रहे, आपकी मुमानी के पास जा रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बिग डील। आधे घंटे से ज़्यादा सफ़र तय हो जाने के बाद भी उसे गोद में पड़े हाथों को मुस्तकिल मिजाजी से मशक़ सितम बनाता देख वो टोके बगैर नहीं रह सका। ऐसा नहीं है। दोनों हाथों को अलग करती वो गंदा ख्याल से चौंक कर सीधी हुई। लबों तक बहुत कुछ कहने के लिए आने के बावजूद उसने पर इक्तफा किया, जिसकी 2 वजह थी। एक तो उनके रिश्ते में बेतकल्लुफ़ी ना के बराबर थी, दूसरा वो उस वक्त उस समेत मुतवक्को सूरत हाल को लेकर भी हरासा थी। एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो। मालूम है धड़कन का तकाजा भी है, लेकिन ये बात किसी ख़ास मुलाकात पे रख दो। 10 बजे के करीब दरवाजे पर हुई मोहतात दस्तक के साथ वो बेदार हुआ। वापसी पर हाथ में शियापर थामे वो गालिबन नज़ीर लेकर आया था। ऐसे ठंडा हो जाएगा, आप ताज़ा दम होकर आएं, फिर साथ शुरू करेंगे। प्लेट वगैरह निकाल कर वो पार्सल खोलने लगा कि मुकद्दस के टोकने पर हाथ रोकते नींद के खुमार से भारी निगाह नाफहमी में उठी। मुझे आधा घंटा कम अज़ कम लगेगा, आप खा लें, वो ठहर कर बोला।
कोई मसला नहीं, हम साथ ही खाएंगे, साथ खाने में बरकत है, ऐसे अब्बा कहते हैं। हाथ में मौजूद किताब से लहजे भर को निगाह हटाकर उसने मजबूत हवाला भी दिया तो वो जेरे लब बुड़बुड़ाता वहाँ से निकल गया। और फिर आधे घंटे की सवारी मुश्किल से 15 मिनट में नम बालों के साथ टेबल पर मौजूद थी। खामोश माहौल में नाश्ता ख़त्म हुआ। उसके बाद वो उसे बेड पर मुंतकिल करता बाहर चला गया। चूँकि रात की कड़ी हिदायत ज़हन में ताज़ा थीं लिहाजा किसी काम को हाथ लगाकर दोबारा वो मौसूफ से लापरवाही का सनद लेने की बजाय उसने किताब के औराक की गर्दान को चुना। दूसरी वजह यह भी थी कि पैर सूजन की वजह से काफ़ी भारी हो रहा था। कल के मुकाबिल दर्द भी खासा ज़्यादा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। आपका शरई पर्दा क्या औरतों से भी होता है? करीब 1 घंटे बाद दहलीज अबूर करते उसने अतरंगी सा सवाल दागा था, जिस पर किताब में गर्क मुकद्दस का भौंचंकना आयन यकीनी रद्द-ए-अमल था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप ये क्यों? आ जाएं आप लोग अंदर। जवाब मुकम्मल होने से कबल ही उसने दरवाजे की सिम घूम कर कहा और फिर यके बाद दीगरे 3 नए चेहरे कमरे में दाखिल हुए। कबल इसके कि वो उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह तलाश में खुद दिमाग के घोड़े दौड़ाती, साहब बहादुर की शाज़ो नादिर खुलने वाली ज़ुबान से खुद ही गुलपोशियाँ हुई। आज से ये तीनों आपके लिए कॉटेज में काम करेंगी। इनमें से एक यहाँ पूरा दिन रहेंगी जब तक मैं नहीं आ जाता। बाकी दोनों अपना अपना काम करके चली जाएंगी। ये लोग अपना काम जानती हैं, फिर भी आप चाहें तो इन्हें काम समझा दें। अभी के लिए आप लोग जाएं, अपना काम करें। किसी शाही फरमान की तरह अहकामात जारी करते उसने इशारा किया तो तीनों खवातीन जी बाबू सा कहती इधर उधर हो गई, जैसे बरसों से उस जगह वो यहाँ के काम से आगाही रखते हों। गैर मुतवक्को सूरत हाल में शदीद सदमे के ज़ेरे असर बैठी पांचवीं शख्सियत की कैफियत का ना बादशाह सलामत ने नोटिस लिया, ना ही सर को खम देकर ये जा वो जा हुई रियाया ने। फिर मौसूफ अपनी मखसूस तैयारी में शामिल लेदर जैकेट, लॉन्ग बूट्स और ब्लैक सन ग्लासेस, जिनकी धुंध हो या धूप किसी मौसम में छुट्टी नहीं थी, पहनकर तमाम तर बेनियाजी के साथ जीप की चाबी उठाते जोजा की आंखों में दर्ज तराजी बल्कि एहतजाजी कलाम को पूरी तरह नज़रअंदाज करके सल्तनत से अपनी वसी पैमाने पर फैली जागीर की खबरगिरी के लिए कूच कर गए। मुकद्दस कुलस्कर बस उन औरतों के लिहाज में फ़िलहाल के लिए जरा मुलतवी कर गई थी। पूरे 5 साल 4 महीने बाद आज उसने इस हवेली की दहलीज पर कदम रखे थे जहाँ उसका बचपन गुजरा था, जहाँ की दरो दीवार से नाना नानू के साथ गुजरे अनमोल पलों की खुशबू लिपटी थी, तो मासा के साथ गुजरी अनगिनत तल्ख लम्हों की छाप भी आंखों में रेत बनकर उतर आई। खिलाफे तवक्को उनका हवेली में बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था। अब इसकी वजह वाकई बरसों से गहरी नींद सो रहे मामू के जज्बात का जागना था या उस्मानी ख़ानदान के मुतवक्को सरदार की आमद थी, वो नहीं जानना चाहती थी। अलबत्ता पूरे एहतमाम के साथ तैयार मुमानी का वही अंदाज था, चेहरे पर तबस्सुम और आंखों में तंज, अल्फाज मुहज्जब, अंदाज मकरू, लहजा शहरागी पर नियत जहर मुज़य्यन। लेकिन मीराल का दिमाग तो अपने पहलू में निहायत बेतकल्लुफ़ी के साथ टांग पर टांग जमाकर शाहाना तेवर लिए किसी रियासत के शहजादे की मानित बराजमान बारान उस्मानी ने चकराया हुआ था, जो हवेली के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसके साथ यूं अपना रवैया बदल गया कि उस जैसी नाजुक आसाब की मालिक लड़की तो क्या कोई भी चकरा जाता। इस कदर अपनायत और बेतकल्लुफ़ लबो लहजा के मानो उनके दरमियान सब ठीक नहीं बल्कि काबिल रश्क हो। वेल, मिराल तो हमारी सब्र व शुक्र वाली बच्ची है, जो मिलता है बिना पसो पेश कबूल कर लेती है, पर सुना है आप बहुत चूजी हैं, तो मैंने सोचा मेन्यू आपकी पसंद का खसूसी ख्याल रखते हुए आपके आने के बाद ही डिसाइड करें। नज़ाकत से जूस का गिलास उठाती मुमानी ने निहायत सलीके से तंज उछाला। चूजी तो मैं वाकई बहुत हूँ, मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ही अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं। बट ट्रे से ग्लास उठाकर मिराल की सिंध बढ़ाते उसने भरपूर इस्तेहकाक भरी नज़र पजल हो रही निस्फ बेहतर पर डाली, फिर मुमानी की तरफ मुड़ा। बट आप किसी किस्म के तकल्लुफ़ या एहतमाम की हरगिज़ ज़हमत नहीं करें, मुझे किसी काम से शहर भी पहुंचना है 3 बजे तक, तो पेश की माजरत। अरे ये क्या बात हुई जेंटलमैन, हमने तो लंच पर इनवाइट किया है। और मामू फ़ौरन मोतरज़ हुए। जी मामू साहब, पर मेरा काम काफ़ी ज़रूरी है। वो तो आपने दी जान को स्पेशली कॉल किया तो आना पड़ा, बाकी लंच इंशाल्लाह फिर कभी। उसने सहूलत से उज़र तराशा। फिर कभी तो मुमकिन नहीं, अब हम जाने कब दोबारा आए यहाँ। मुमानी का फ़ौरन तफाखराना लुक्मा आया। उसका तो कोई मसला ही नहीं, आप यहाँ नहीं आए तो हम वहाँ चले आएंगे। क्यों मिराल, क्या ख्याल है पासपोर्ट बनने के बाद पहला टूर कनाडा का ना कर लें? मुमानी के तफाखराना तंज को तीली लगाते वो महबूब बीवी को मुखातिब करने के अंदाज में उसकी सिमत मुड़ा तो पहले के झटकों से उभरने की कोशिश में हल्कान मिराल भौचंका रह गई। आप मिराल का पासपोर्ट बनवा रहे हैं? मिराल से ज़्यादा बड़ा झटका मुमानी को लगा।
तभी उनकी हैरानगी बल्कि सदमा ब्रांडेड मेकअप की तह में भी छुपा ना रह पाया। जी, इसलिए जल्द निकलना है यहाँ से, ताकि इनकी फाइल जमा करवाते मैं अपनी मीटिंग भी अटेंड कर लूँ। उनके रद्द अमल के बरखिलाफ उसका अंदाज बेहद आम था, जो मिराल के लिए भी एक इंकशाफ ही था। आपकी मुमानी का मतलब है कि आप तो बिजनेस वहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं ना, और आपकी हवेली की कोई औरत बाहर मुमालिक कहीं भी नहीं है। तो मुमानी के हाथ पर हाथ रखकर इशारा देते मामू ने बात संभाली। जी, बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, बट बिजनेस ट्रिप्स तो होते ही हैं ना, और फिर घूमना मेरा शौक है। और दी जान कहती हैं शादी का मतलब है पार्टनरशिप, तो अब ये चाहे ना चाहे घूमने में तो इन्हें मुझे कंपनी देना ही होगी। दूसरा, हवेली की औरत फॉरेन कंट्री नहीं गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा कोई रूल है, और अगर होता भी तो बारान उस्मानी में इतने गट्स हैं कि उनके लिए कि इनके साथ के लिए मैं रिवायात बदल दूं। अपनी ज़ात का मान और इज्जत बख्शते अल्फाज, चट्टानों से मजबूत अज़ाइम से लबरेज मुदल्लिल लहजा ऐसा था कि हाजरीन कुछ सात सांसों की तकरार रोक कर उसका रोबदार चेहरा देखते, जिस पर जमी तबस्सुम की परत उसकी वजाहत की ताबनाकियां दो चंद कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम पुरुमीद हैं जल्द हमारी मीराल से कनाडा में मुलाकात होगी। खिसियानी मुस्कुराहट के साथ मुमानी ने खामोशी के दौरानिए को मुख्तसर किया। जवाबन वो दिलकशी से खैर मकदम करने के अंदाज में मुस्कुराया। मामू के भी होंठ फैले, पर वो गर्दन झुकाए अपना पसंदीदा मशगला हथेली को घूर रही थी। दफतन मामू का फ़ोन रिंग हुआ तो वो माजरत करते हुए एक जानिब बढ़ गए, जबकि चंद सेकंड पहले के सदमा और खिसियाहट को पसे पुश डालकर मुमानी एक दफ़ा फिर मिशन ए टोल लेने पर मामूर हुई। वैसे हमारी मीराल बहुत कम गो है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। आपकी तरह एक्टिव, मेरा मतलब है सोशल नहीं। जाहिर सी बात है आपने दुनिया देखी है, और इसने सिर्फ छोटा सा बैकवर्ड गांव तजाद पै दर पै सानिहा ने इसकी पर्सनालिटी को बहुत मस्त सा बैकवर्ड कर दिया है। मैं और आपके मामू साहब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर कि कहीं ये ज़ोर ज़बरदस्ती भारी ना पड़ जाए। मीज़ान की बात और थी। आप तो मुमानी, मैं ज़रा मासा का कमरा देख कर आती हूँ। बड़े ज़ब्त से बैठी वो यकबयक उठती, बिना कुछ देखे तेज़ी से ड्राइंग रूम से निकलती चली गई, जिस पर बारान के मुतबस्सम नकूश में संजीदगी को उतरता देख मुमानी के लबों पर मकरू मुस्कुराहट सूरत से फैली। बेटा, बुरा नहीं मानना, वो शायद मीज़ान के नाम पर, मैं अपने भाई के जिक्र पर बुरा क्यों मानूंगा भला। लोहा गर्म है, सोचकर वो ज़र्ब लगाने का सोच ही रही थी कि लम्हाती कैफियत से निकले बारान ने फ़ौरन बात उचक ली। वो इसलिए कि उनका शातराना दिमाग भग से उड़ा। माजरत के साथ, बट ये आप आउट ऑफ कंसर्न कह रही हैं या जिस वजह से भी कह रही हूँ, बट मुझे आपके पूरे बयान पर इख्तलाफ है। ना हमारी शादी फोर्स्ड मैरिज है और ना ही मिराल कोई बुज़दिल या बैकवर्ड लड़की। और रही बात पर्सनैलिटी डिफरेंट होने की, तो एक माँ से पैदा हुए दो बच्चों में सेम फितरत नहीं होती। एंड लास्टली, उनके सारे बयान को खुश अखलाकी की तेज़ धार से तार तार कर ज़रा सी पोजीशन में तब्दीली लाता उनके फीके पड़े चेहरे को उसने देखा। मीज़ान मेरा भाई है, उसका जिक्र कभी भी मेरे लिए किसी भी एतबार से तकलीफ़ या ऑकवर्डनेस की वजह नहीं बन सकता, पर मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मीराल की कैफियत का आइंदा ख्याल रखें। अल्फाज बिलाशुबा उसके इल्तजाइया थे, लेकिन लहजा कतई खबरदार करने वाला। तजाद उसके खूबरू खदो खाल में फैली संजीदगी की सख्त परत ने उन्हें अच्छी तरह बावर करवा दिया कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलनी, लिहाजा मज़ीद कोशिश करके कलेजा ना जलाया जाए अपना ही। सॉरी बेटा, मैं वो ज़रूरी कॉल की वजह से। अरे मिराल कहाँ चली गई? मामू माजरत करते वापस आए। जी, वो ऊपर गई हैं अपनी मासा का कमरा देखने, बारान ने जवाब दिया, जबकि मुमानी जले दिल के फफूले दिल में ही फोड़ती वहाँ से निकल गई, जिसका नोटिस लिए बगैर वो मामू के साथ हल्की फुल्की बातें करने लगा। साथ गाहे बगाहे निकाह भटकती हुई उस सिमत भी जा रही थी जिस सिमत उसका सरापा गुम हुआ था।